Okay, first of all, good morning to all of you. Let us start by the grace of great Vaheguru and great Lord. Today, our topic is hysteresis curve. So, it has several names: hysteresis curve, hysteresis loss, BH curve, BH loss. Okay. So, yes. So these are this is a topic. See, hysteresis is one of the important property of the ferromagnetic material. Okay. So ferromagnetic material generally shows the hysteresis loss. What's the dictionary meaning of hysteresis? Hysteresis means lags behind. Hysteresis means lags behind. It means एक चीज आगे चलेगी, एक चीज पीछे. So what is H? H is called a magnetic field. V is called a magnetic induction. Okay. Now let us start. I will start from the point O. तो पहले एक लाइन लिख लीजिए. It is a property of ferromagnetic material. A property of ferromagnetic material is hysteresis. A property of ferromagnetic material is hysteresis. Bracket. Hysteresis means loss. Hysteresis means loss. ठीक है? Lags behind और loss. Definition of hysteresis. It may be defined as hysteresis may be defined as lag. Hysteresis may be defined as lag in the changes of magnetization. It may be defined as lag in the changes of magnetization behind variation of magnetic field. Behind variation of a magnetic field. Second definition लिखिए. Hysteresis is a loop pattern. Hysteresis is a loop pattern of the magnetic field induction B. B vector. Hysteresis is a loop pattern of the magnetic field induction B and increasing or decreasing magnetic field H and increasing or decreasing magnetic field H applied to initially unmagnetized ferromagnetic sample. Unmagnetized ferromagnetic sample. Now the next question is, what do you mean by ferromagnetic material? क्या होता है भाई शाही? What do you mean by ferromagnetic material? Ferromagnetic material are those materials which are highly magnetized in the direction of a magnetic field, and magnetic lines of forces can penetrate through the sample. Okay. और वो आप मेरे को बताइए, what is the condition under which the ferromagnetic becomes a paramagnetic? Temperature. Which temperature is called? Curie's temperature. So above Curie temperature, ferro changes to paramagnetic, and below Curie's temperature, para becomes ferro. Okay, so temperature is the most important part. So it means ferromagnetic samples, ferromagnetic materials are dependent on a temperature. And see, this hysteresis curve is mainly shows by the ferromagnetic sample. It's mainly shown by the ferromagnetic sample. Now let us start to explain this curve. See, हमारे पास एक sample है that is initially unmagnetized. See, this is called x-axis. This is called a y-axis. What is the equation of x-axis? What is the equation of x-axis? y0. क्या होता है भाई? Equation of x-axis क्या होता है? y0. और what is the equation of y-axis? x0. Okay. Similarly, on the basis of this concept, on this h-axis, b क्या होगा? 0. है ना? तो मैं लिखूंगा on h-axis b क्या होगा दोस्तों? 0 होगा. b क्या होगा? 0 होगा. on b-axis जो कि y-axis है, इस पे क्या होगा? on b-axis पे क्या होगा दोस्तों? h0 होगा. यही होगा ना? Now see what will happen. What is h? H is the external applied magnetic field. तो हम क्या करते हैं? Initially we will give a external magnetic field. तो हम उसकी strength को बढ़ाते हैं. We slowly increase the strength of the external magnetic field. What we will see? तो स्टार्टिंग में क्या होता है सैंपल की, जब हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो सैंपल क्या होगा? सैंपल मैग्नेटाइज्ड होना
स्टार्ट कर देगा। as we slowly increase the magnetic field, the sample starts to begin the magnetize। तो उसमें जैसे हम बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं उसमें चुंबकीय गुण आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैग्नेटाइज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटाइजेशन? कि वो मैग्नेटाइज हुआ कि नहीं हुआ, मतलब उसमें वो चुंबक बना कि नहीं बना। ठीक है, तो देखिए जैसे ही हम ओ से स्टार्ट करते हैं, जब हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो सैंपल स्लोली स्टार्ट टू इंक्रीज द मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो मैग्नेटाइज होना स्टार्ट होता है और फिर एकदम तेज हो जाती है मैग्नेटाइजेशन और इस पॉइंट ए पे जाके इट विल गेट द मैक्सिमम मैग्नेटाइज, इट विल गेट द मैक्सिमम मैग्नेटाइज। ठीक है, I got your point, and that is called that path is called OA. That path is called and OA path is called path of magnetization. Path of magnetization of which sample? Dia, or ferro? Ferro. Okay. OA is called the path of magnetization of the ferromagnetic material. Ferromagnetic material. Now see, the sample get magnetized by acquiring the path from O to A. सैंपल ने मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट की फ्रॉम O टू A जैसे जैसे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाते गए। ठीक है, जैसे हम H बढ़ाते गए so see जैसे हम H बढ़ाते गए तो सैंपल मैग्नेटाइज होता गया। A पे क्या हुआ? A पे जाके क्या हुआ? इट गेट फुली मैग्नेटाइज, मैक्सिमम मैग्नेटाइज एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट A the corresponding B is called the corresponding value of B is called a BS, which is called a saturation flux density. Saturation flux density. Saturation का मतलब क्या होता है? It get maximum magnetized. It get maximum magnetized. ठीक है, saturation का मतलब ये होता है, हिंदी में आपको बताऊंगा, जैसे आपने चाय पी ली है। ठीक है, चाय से पहले अगर आप बहुत कोई मीठी चीज खा लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने गुलाब जामुन खा लिया, बहुत मीठा गुलाब जामुन खा लिया, उसके बाद अगर आप चाय पियोगे तो आपको चाय क्या लगेगी? फीकी। ठीक है, चाहे आप चाय में फिर भी आप शक्कर डालते जाओ बट उसका मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये क्या हो गया? सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। अब जितनी मर्जी आप उसमें शुगर डालिए, कोई एफर्ट को रिजल्ट नहीं आएगा। तो सी BS इज कॉल्ड अ सैचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी। अब क्या करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, H जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसको हम क्या करते हैं? नेगेटिव डायरेक्शन में लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में लगाना स्टार्ट करते हैं। अब देखो जैसे हम उसको नेगेटिव डायरेक्शन में लगाना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है? तो जो मैग्नेटाइजेशन थी पहले उसने कौन सा रास्ता एक्वायर किया था? OA। अब वो आना तो उसको AO पाथ पे आना चाहिए था, बट वो किस पाथ पे जाती है? AC पाथ पे। किस पाथ पे जाती है? AC। एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट C। अब देखिए जब O पॉइंट पे क्या है? दोनों जीरो है। O पॉइंट पे क्या है? दोनों जीरो है। O पॉइंट पे H भी जीरो है, B भी जीरो है। ठीक है, O पॉइंट पे क्या है? एट पॉइंट O H इज जीरो, B इज जीरो। ठीक है, अब देखो जब H जीरो हो गया, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स लगा रहे हैं, तब जब ये वापस आए तो इस पॉइंट पे H क्या हो गया? जीरो। ठीक है, लेकिन देखो कौन सा पॉइंट हमें मिलता है? C। इसका मतलब है जब H जीरो होता है B जीरो नहीं होता। B की कितनी वैल्यू होती है? OC। क्या होती है? OC। एंड OC इज कॉल्ड अ B। OC इज कॉल्ड अ, इसको हम बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। इसको क्या बोलते हैं? रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ओके, रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन। आई मीन टू से we have taken the value of external magnetic field 0। हमने बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दिया है, लेकिन सैंपल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो नहीं हुआ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो O पॉइंट में क्या है? H जीरो है बट B इज नॉट जीरो and that magnetization is called OC, is called OC, which is equal to BR, and this is called R corresponding to subscript R corresponds to retentivity. This is called retentivity or remanence of material. The dictionary meaning of retentivity or remanence is वो कितना retain करता है। What's the dictionary meaning of remanence or retentivity? कि वो कितना रिटेन कर। जब H जीरो हो गया बट B जीरो नहीं हुआ, सैंपल में अभी भी मैग्नेटाइजेशन है, सैंपल अभी भी मैग्नेटाइज्ड है। अब हमें सैंपल में क्या करना है? B जीरो करना है। हमें सैंपल में क्या करना है? व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट द B इज इक्वल टू 0 इनसाइड द सैंपल। व्हाट वी विल डू, वी विल अगेन अप्लाई दी, हम दोबारा क्या करेंगे? बस मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे।
अब देखो जब दोबारा करेंगे तो क्या होगा, तो इसलिए कौन से पाथ को फॉलो करता है, सी से आगे डी, एट डी पॉइंट पे क्या होगा, डी पॉइंट पे बी क्या हो जाएगा, 0, डी पॉइंट पे बी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोएसिव फोर्स। क्या बोलते हैं, कोएसिव फोर्स। हमें कितना मैग्नेटिक फील्ड, कितनी फोर्स लगानी पड़ी, कितना मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स डायरेक्शन में लगाना पड़ा, जिसकी वजह से सैंपल में बी क्या हो गया, 0। तो इस पॉइंट पे क्या है, H 0 है बट B 0 नहीं है। सी पॉइंट पे, एट सी पॉइंट H is 0 but B is not introduced, so I will write here at point C, C पे क्या है भाई, H 0 है बट B 0 नहीं है, और B की क्या वैल्यू है, B is equal to प्रथम, B is equal to कितनी है, सी पॉइंट पे B is equal to BS, B is equal to BS है ना। और एट पॉइंट D, एट पॉइंट D पॉइंट पे क्या है, एट पॉइंट D पॉइंट पे क्या है, D पॉइंट पे क्या है भाई, B0 है, D पॉइंट पे क्या है, B0 है बट H नॉट इक्वल टू, और H की कितनी वैल्यू है, माइनस H की कितनी वैल्यू है, माइनस H, ठीक है, बिकॉज हम उसका रिवर्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अभी हम उसको और रिवर्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं H को, तो क्या है, इट विल फॉलो द पाथ DF, ठीक है। अब हम F पॉइंट पे जाके क्या करते हैं, इसको बढ़ाना स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तब ये कौन सा पाथ करता है, F से, सॉरी F यहाँ पे क्या आएगा, A B C D E, A B C D, यहाँ पे E, सॉरी दिस इज E, दिस इज कॉल्ड द B। E से कहाँ जाता है, F से G, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द A C D E F G A, दिस इज कॉल्ड द साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो सैंपल क्या होता है, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज। सो दिस इज कॉल्ड द पाथ A C, ये बना मेरे को, D E F G A, that is called the cycle of magnetization. तो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, द सैंपल गेट मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, तो ये बार-बार होता रहता है, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, ठीक है। तो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिलेटिविटी एंड रिलेटिविटी, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी लॉस। आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, तो क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस, क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस, ठीक है। और ये एनर्जी लॉस ज्यादा होनी चाहिए कि कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो BH कर्व है, ठीक है, इसका पेड़ जितना बड़ा होगा तो लॉस उतना ज्यादा होगा, इसका पेड़ जितना कम होगा लॉस उतना कम। व्हिच वी डिजायर, कम वाला, ठीक है। सो वी रिक्वायर, सो आई हैव रिटन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल शोज अ स्मॉल BH कर्व प्रोड्यूसेस अ स्मॉल हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है। जितना इसका कर्व बड़ा होगा उतना लॉस ज्यादा होगा, जितना इसका कर्व पतला होगा उतना लॉस कम होगा, ठीक है। तो इसका जो पेड़ है उसको हम बोल देते हैं, इसका पेड़ बड़ा होगा तो लॉस ज्यादा होगा, ठीक है। ज्यादा पेड़ को ज्यादा एनर्जी चाहिए, कम पेड़ को कम एनर्जी चाहिए, तो ठीक है। तो लेट अस कैलकुलेट द एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस और एनर्जी डेसिपेटेड पर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ H into dB जूल पर मीटर क्यूब, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आएगा, एरिया ऑफ BH कर्व, जितना इसका एरिया होगा, जितना इसका एरिया होगा, मोर द एरिया मोर इज द लोड, ओके। तो लोड लिख लेते हैं, मोर इज द एरिया, मोर इज द एरिया ऑफ BH कर्व, हाँ जी क्या होगा, more loss of more is the loss and vice versa, ओके। तो क्या हो रहा बेटा, सैंपल मैग्नेट देखो जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते से वापस नहीं आता। OA से गया था लेकिन O से A गया, आना A से O चाहिए था लेकिन गया कैसे, A से C, C से D, D से E, E से F, F से G, G से A। So this is called as cycle of magnetization. And what is the retentivity? Retentivity is the
रिटेंटिविटी इज द, कैसे बताएंगे? रिटेंटिविटी वो पॉइंट होता है जब H0 होता है बट B0 नहीं होता है। मतलब इसको हम बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, कि सैंपल अभी भी मैग्नेटाइज है। एक होती है टर्म प्रेसिविटी। प्रेसिविटी होती है वो नेगेटिव, वो फोर्स, ठीक है, हमें वो फोर्स लगानी पड़ती है, हमें वो मैग्नेटाइजिंग हमें वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड बाहर से लगाना पड़ता है, वो वैल्यू जिस पे सैंपल के अंदर की जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो क्या हो जाए? 0। तो वो पॉइंट होता है D, OD, ठीक है। OC is called attentivity, OD is called coercivity. Let us write 2 points. Let us write the curve start at point O. The curve start at point O and follows the path OA. Benedict, Joseph, are you getting this? This tells us full stop. As H is increased, initially as H is increased, comma, B is increased slowly and then rapidly. As H is increased, B slowly increased and then increased rapidly. पहले B कम इंक्रीज होता है, फिर रैपिडली ऊपर जाता है। देखो पहले कम हो रहा फिर ज्यादा हो गया, ठीक है, एकदम आगे से बढ़ता है, ठीक है। एंड फाइनली रीचेस एट पॉइंट A, and becomes independent of H, ठीक है, and it becomes independent of H. The maximum value of B is called saturation flux density. The maximum value of B is called, जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, explain saturation flux density. तो आप क्या बताओगे? It's the maximum value of H. It's the maximum value of B. Sorry, it's the maximum value of B. The maximum value of B is called saturation flux density, DS, and the corresponding magnetization is the saturation magnetization MS. जब BS है, जब B की वैल्यू BS होती है तब M की वैल्यू क्या होती है? MS. M की वैल्यू क्या होती है? MS. ठीक है, ये लिखा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, if H is decreased, सेकंड पॉइंट लिखिए, the third, if H is decreased, if H is decreased, जब H को डिक्रीज करते हैं, then B also decreases by following the path AC, instead of AO, by following the path AC instead of the original path A, ऐसे लिखो, by following the path AC instead of the original path AO. रेड पेन से लिखो hence, इसका मतलब क्या हुआ? hence B lags behind H. इसका मतलब क्या हो गया? B H से पीछे चल रहा है, H तो 0 हो गया, B 0 नहीं हुआ। कौन से पॉइंट पे नहीं हुआ? C पॉइंट पे। कौन सी पॉइंट पे? C पॉइंट पे, ठीक है। तो B lags behind H, ओके। that is, रेड पेन से लिखो, that is at point C H is equal to 0 but B is not equal to 0, जो मैंने लिखा है यहाँ पे। that is at point C H is equal to 0 but B is not equal to 0, that is B is equal to BS. B is equal to नहीं BS नहीं है, सॉरी BR मैंने गलत लिख दिया। B is equal to BR, B is equal to BR, B is equal to BR, B is equal to क्या था? BR, ओके। B is equal to BR, okay, ब्रैकेट लिखो OC, that is OC is equal to BR, OC is equal to BR. The subscript R denotes retentivity.
ओके, और रेमिनेंस, इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है? इट्स क्लियरली शोज दैट, प्रिंसिपल लिखो, इट क्लियरली शोज दैट material remains magnetized even in the absence of external magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया है बट फिर भी सैंपल क्या है दोस्तों? मैग्नेटाइज्ड है। कौन से पॉइंट पे? सी पॉइंट पे। H 0 है, B 0 नहीं है। B की कितनी वैल्यू है? BR। कितनी वैल्यू है? BR। इस वैल्यू को क्या बोलेंगे बेटा? BR। ठीक है। It clearly shows that material remains magnetized even in the absence of external magnetic field H. अगले लाइन में टेंटिविटी डेफिनेशन बनाइए। टेंटिविटी आती है डेफिनेशन, डिफाइन टेंटिविटी, हिस्टेरिसिस की डेफिनेशंस आती हैं। टेंटिविटी और एमिनेंस, टेंटिविटी और एमिनेंस, ठीक है, ये पॉइंट भी है। द पावर ऑफ रिटेनिंग मैग्नेटिज्म, द पावर of retaining magnetism is called the tentivity or eminence of the material. किसी भी सैंपल की मैग्नेटिज्म एक्वायर करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं? H 0 है, बाहर हमने फील्ड हटा दिया है बट वो अभी भी क्या है? मैग्नेटाइज्ड है। सैंपल अभी भी क्या है? कितना मैग्नेटाइज्ड है? OC, एंड OC is equal to BR। ठीक है, समझ आएगी नहीं? अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? और एक और डेफिनेशन लिख लीजिए। सेकंड डेफिनेशन, द टेंटिविटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द टेंटिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द मेजर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B, is the measure of magnetic flux density B present in the sample when the magnetizing field H is removed. When the magnetizing field H is removed. H हटा दिया है बट B अभी भी है। वो कितना है? वो कितनी वैल्यू है B की? उस पैरामीटर को क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। और वो कौन सा पॉइंट है दोस्तों? C पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? C पॉइंट। C पॉइंट पे क्या है? H 0 है, क्योंकि इस एक्सिस पे क्या होगा? H 0 होगा बट B 0 नहीं है। कितनी वैल्यू है B की? OC। B की कितनी वैल्यू है? OC, एंड OC is equal to BR, which is called the attentive. Okay, or reminence of the material. अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सैंपल के अंदर जो फील्ड है, मान लीजिए सैंपल के अंदर भी फील्ड है 20 यूनिट्स। कितना है? Let us say BR is equal to 20 units. तो हम क्या चाहते हैं? वो 20 यूनिट से कम होकर कितना हो जाए? 0 हो जाए। तो हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड को, जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाया H, उसको नेगेटिव डायरेक्शन में लगाएंगे, क्योंकि इस एक्सिस पे क्या हो जाएगा? B 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमें तब तक फील्ड लगाना है जब तक ये कर्व इस पॉइंट को, इस एक्सिस को टच ना करे, क्योंकि इस एक्सिस पे क्या होगा? B 0। H एक्सिस पे क्या होगा? B 0। तो आगे लिखिए, अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। when the magnetic field H is applied in reverse direction, that is a field of magnitude minus HC, must be applied to reduce the flux density B to be 0. Must be applied to reduce the flux density B to be 0. The value of H is called coercivity. Or coercive force. The value of Hc is called a coercivity or a coercive force. Okay, लिख लिया सबने? The value of Hc is called a coercivity or coercive force. वो कितना हम Hc लगाएंगे नेगेटिव डायरेक्शन में जब B क्या हो जाए? 0। तो वो coercive force का मैग्नीट्यूड कितना होगा दोस्तों? OD। कितना होगा? OD। और OD की वैल्यू कितनी है? -Hc। कितनी है? -Hc। ठीक है।
माइनस एच। ओके, तो एक और डेफिनेशन लिखिए हो, तो लिखो सो कोरेसिविटी इज अ मेजर ऑफ। तो कोरेसिविटी में क्या बताती है, कोरेसिविटी में क्या बताती है कि जब सैंपल के अंदर का जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो बी क्या हो जाए, जीरो। तो कोरेसिविटी इज अ मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, कोरेसिव फोर्स और कोरेसिविटी इज अ मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड। हमें कितना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कि सैंपल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाए, जीरो। इज अ मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय the residual magnetism in the sample, to destroy the residual magnetism in the sample। कि सैंपल में जो मैग्नेटिज्म बचा है तो क्या बोलते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। वो क्या हो जाए, जीरो। क्या हो जाए, जीरो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, as we move further that is we increase h in the reverse direction, we increase h in the negative direction, the saturation is ultimately reached at point E। saturation कहाँ पे पहुंच गई, at point E पे, at point E। लास्ट पॉइंट लिखिए, hence the closed curve A B C D E F G A, hence the closed curve A C D E F G A is called cycle of magnetization, is called a cycle of magnetization of a sample, and it is also known as hysteresis loop, of the sample, hysteresis loop of the sample। तो ये कौन से मटेरियल शो करते हैं hysteresis loop, फेरोमैग्नेटिक। कौन से करते हैं, फेरोमैग्नेटिक। ओके, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल शो दी hysteresis loop। ओके, नाउ दिस इज एनर्जी लॉस। तो जितना एरिया ज्यादा होगा कर्व का उतना लॉस ज्यादा होगा, जितना एरिया कम होगा उतना लॉस कम होगा। तो सैंपल क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज। तो ये वही बात है, आप खड़े हो रहे हो फिर बैठ रहे हो, खड़े हो रहे हो बैठ रहे हो, तो उसका मतलब क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, लॉस। ठीक है, तो लिखिए आगे लिखिए इट इज एप्लीकेशन। लिखिए जो ट्रांसफार्मर की कोर्स होती है उनमें हमें वो मटेरियल चाहिए जिसकी हिस्टैरिसीस लूप क्या हो, कम हो, ताकि लॉस क्या हो, कम हो, और एनर्जी क्या हो, मैक्सिमम ट्रांसफर हो सके। ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी हो। तो लिखिए इट इज, तो लिखो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल BH curve, consist of narrow BH curve, ऐसे लिखो, consist of narrow BH curve is used in fabrication of cores of the transformers। हम बूझ को रहे हैं, लिखो it is used in the fabrication of cores of the transformers and armature of the motors because क्यों यूज होती है, because narrow BH curve means small loads, narrow BH curve represent small energy loss। हाँ जी, जब हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो होता क्या है, उसकी जो मैग्नेटिक डाइपोल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो
उस डायरेक्शन में क्या हो जाती है, अलाइन। इस डायरेक्शन में क्या हो जाती है, अलाइन। किस डायरेक्शन में अलाइन होती है, जिस तरफ क्या लगता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या लगता है, मैग्नेटिक। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है कि सैंपल में अगर पूरे एटम की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट डोमेन्स होती है। क्या होती है, डिफरेंट डोमेन्स। ओके, इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है एटम्स की अलग अलग होती है। क्या होती है, अलग अलग। जब हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं देन दे विल ऑल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब उनको अलाइन करने में कुछ एनर्जी लगी। उनको अलाइन करने में कुछ एनर्जी लगी। जैसे आप मॉर्निंग में आप बोलते तो मैं कहता हूँ ना आपको चुप कर जाओ, किसकी एनर्जी जा रही है, टीचर की जा रही है। तो वो क्या है, लॉस है कि गेन है, लॉस। इसी तरह से जब हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं then all the magnetic dipoles will align in the direction, will try to align in the direction of magnetic field। okay, तो इसका मतलब जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे अलाइनमेंट क्या है, बढ़ती जाएगी कि कम होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। पहले 50 एटम होंगे, फिर 70, फिर 80, फिर 100। इसका मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल्स बैठी हैं उनका नंबर भी क्या है, बढ़ रहा है। उनका नंबर भी बढ़ रहा है। इसका मतलब इट मीन्स सम एनर्जी इज यूज्ड, सम एनर्जी इज कंज्यूम्ड। इसका मतलब कुछ एनर्जी क्या लग रही है, इन सबको अलाइन करने में लग रही है। अब देखो जो एनर्जी लगी, जब एनर्जी इसको मैग्नेटाइजेशन में लगी और जब ये डीमैग्नेटाइज हुआ तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा क्या आया दोस्तों, लॉस। ये हमारा क्या आया, लॉस। समझ आई कि नहीं आई? होना क्या चाहिए था, एनर्जी गेन इज इक्वल टू एनर्जी लॉस। जितनी एनर्जी दी उसमें से ये इतना लॉस है, इतना क्या आया, लॉस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 100 यूनिट्स एनर्जी दी, 100 में से 80 लग गई उनको अलाइन करने में, और बचे कितनी, 20। और वो 20 यूनिट्स क्या हुआ, दैट 20 यूनिट्स एनर्जी गेट वेस्टेड और डेसिपेटेड ओके इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी लॉस। सो दिस इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस। तो आज हमने पूरे का पूरा लेक्चर हिस्टैरिसीस पे कवर किया है, हिस्टैरिसीस लॉस पे कवर किया है, बिकॉज इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज एग्जाम कंसर्न्ड, क्योंकि इसका एक प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, वी विल डू द सेम इन दिस लैब आल्सो। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना एरिया इसने एक्वायर किया, कितना एरिया इसने एक्वायर किया। So any doubt from your side? So basically there are 3 definitions: hysteresis, retentivity, coercivity. Okay, hysteresis means lag behind. B क्या करता है? B lags behind H. B lags behind the H. Any doubt from your side? Joseph, Benedict, time हो गया? Yes sir. हो गया? Yes sir. Thank you so much. Thank you.